Assalamualaikum students. Today I'm here with another chemistry video. So we were discussing chemical equilibrium, and previously we have learned about law of mass action. What is it? Its definition, few examples, and a basic concept of chemical equilibrium and its constant. Okay. Now I hope you know what I am talking about, and I hope you have complete understanding about the topic. Now we are moving towards our next topic, which is the chemical equilibrium constant. Okay, previously we have discussed about Kc a bit, so now we are going to discuss Kc in detail. We know that okay, so today's topic is definition of chemical equilibrium, what are its units, what is formula, and examples to make it more clear to you. Okay, so first of all, definitions. So definition of the chemical equilibrium constant is product of molar concentration of products divided by product of molar concentration of reactants. This products means the multiplication, okay, and this product means the compounds which are formed as a result of reaction. Okay, so basically Kc is the product of molar concentration of products over product of molar concentration of reactants. Okay, as I have written here, for example, this is the products, okay, and these brackets are representing its concentration, and similarly we have reactants, and these brackets are representing its reactants. So we can always say that product of molar concentration of products over product of molar concentration of reactants. Okay, as we have learned about Kc is equal to Kf over Kr. So Kf is for the forward reaction and Kr is for the reverse reaction. Same is the case. You can write Kf is equal to products and the Kr is equal to reverse reaction. Okay, now we are moving towards its units. So previously we have learned that the mole per decimeter cube, it's the unit of concentration, and it is the same unit for which we are discussing chemical equilibrium constant. Okay, so now let us move to the example to make it more clear. For example, hydrogen and iodine are reactant to form hydrogen iodide. Okay, so when we write it in the form of equilibrium constant, we write it in the concentration of products and the power, and these two is written in the power because it is the rule, and divided by the concentration product of concentration of reactants. This is product of concentration of reactants. Now if we discuss it in the terms of now if we discuss it in the terms of its units, now so we can write here Hi has unit mole per decimeter cube and its square divided by H2 into I2 so these all will be cancelled out and Kc will have no units. Okay, so this is our today's topic. It's very easy and very simple. Now let's have an overview of the topic. अच्छा, तो पिछली दफ़ा हम केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, और पिछली दफ़ा हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ा था कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी एग्जांपल क्या है, और इसके अलावा हम लोगों ने Kc का जो कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था. ठीक है, इसलिए अब उसी कॉन्सेप्ट को हम लेके आगे चल रहे हैं, और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है, और उसकी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे आज, हम उसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, उसका फार्मूला डिस्कस करेंगे कि हम उसको लिख कैसे सकते हैं, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, और फिर हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाए. सबसे पहले हम जब भी किसी टॉपिक को शुरू करते हैं हम उसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं. तो अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम Kc भी कहते हैं उसकी डेफिनेशन देखें तो वो होती है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ये प्रोडक्ट जो है ये मल्टीप्लाई के साइन को डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, तो यहाँ पे वो हमें ये बता रहा है कि कोई भी जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास जो भी उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं रिएक्शन के उनकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को ले लेते हैं. जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम हमेशा न्यूमिनेटर में लिखते हैं, और जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको हम किस में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में. आपको समझ आ गई होगी. तो अब हम क्या करते हैं, इसकी यूनिट्स की बात करते हैं. यूनिट्स हमने पिछली दफ़ा भी पढ़ा था कि इसके मोल पर डेसीमीटर क्यूब्स होते हैं, तो यहाँ पे भी इसका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही रहेगा. अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि
यहाँ पे हो क्या रहा है और KC बेसिकली है क्या। तो जब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन ने आयोडीन के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया है, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं। अब हमने इनको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म्स में लिखना है, तो हम ये प्रोडक्ट है इसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे और ये जो 2 है उसको इसकी पावर में लिख देंगे, और फिर हम नीचे ये तो 2 रिएक्टेंट्स हैं इनके अलग अलग कंसंट्रेशंस लिख देंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने इसकी यूनिट्स को भी तो डिस्कस करना है। तो अगर हम इनको लिखें इनकी यूनिट्स की फॉर्म में, ठीक है, क्या यूनिट है इसकी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, लेकिन उसका हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर भी लिखेंगे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं, और डिवाइडेड बाय H की भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और I2 की भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, उसको हम लिखेंगे। तो अगर हम इस स्क्वायर को खोल दें तो भी तो इसके साथ हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक और ही लिखेंगे ना। इस स्क्वायर का मतलब यही है कि ये कंपाउंड जो है ये 2 दफा है, या ये यूनिट जो है ये 2 दफा है। ठीक है, तो ये सारी यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी और KC का कोई यूनिट नहीं रहेगा। ठीक है, ये बहुत आसान सा टॉपिक था आज का, बहुत छोटा सा था, बहुत सिंपल सा था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।